Hello everyone, welcome back to my channel. This is Guria here. This is video number 005. So these days I am making daily vlogs in Assamese, which I'll be continuing, but this video particularly is going to be in Hindi and English mix cause मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँगी इन दो भाषाओं में. So yeah, basically in this video I'll be sharing all my feelings in the sense कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि सुबह मैं बहुत रोई थी एंड कुछ हुआ था for which I was very upset, and I was supposed to share what happened at the end of the video, at the end of yesterday's vlog, but वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो मैंने सोचा कि नहीं अलग से वीडियो बना देते हैं. एंड आज मैंने इसलिए कोई शूट नहीं किया, तो मैं सोचा कि आज बैठ के बोलते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है, शेयर करते हैं. So yeah, let's get into the video. So basically what happened yesterday was Bengali and Assamese New Year. Poila Boishakh bolte hain hum, first Bohag. So Guddu and me, we were all pumped up and we were supposed to go to the temple and अपना न्यू ईयर अच्छे से स्टार्ट करने का था. तो जो भी है, सुबह हम लोग गए गुड्डू के घर, मतलब जहाँ पे गुड्डू का पेरेंट्स रहता है. एंड जब भी गुड्डू का छुट्टी होता है वी गो देयर एंड वी स्पेंड टाइम विथ द फैमिली मेम्बर्स. एंड तो हम वैसे गए और गुड्डू का मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही थी एंड बाकी सब गुड्डू के दादाजी एंड मेरे ससुर जी बाहर बैठे थे क्योंकि टाइल्स वगैरह का कोई काम हो रहा था. तो हम भी वहाँ पे जाके बैठे एंड सब बात कर रहे, गुड्डू भी वहीं पे थे. तो उसी बीच में एक मोहल्ले वाली आंटी आई. आंटी पे बोलने का मन नहीं कर रहा है. वो आई एंड गुड्डू की मम्मी किचन में थी, तो वहाँ पे घुस के बात करने लगी. एंड थोड़ी देर बाद वो बाहर आई एंड बैठे हम लोग के साथ में. And she started talking to my father-in-law, and she looked at me this way and she asked, "ये कौन है?" to my father-in-law, and he said कि मेरा बड़ा बेटा का wife है. And she looking at me, she denied to believe it that मैं उनके बड़ा बेटा का wife हूँ, which was disgusting first thing. वो मजाक क्यों करेंगे, पहला बात. So basically she judged me for what I am wearing. So I was wearing a dress and she judged me for that. So let me cut you here and give you some context. So basically this is my hometown. Tejpur is my hometown. I am born and brought up here. So बचपन से लेकर मैं I wear all kinds of dresses. Dress हो गया, jeans हो गया, skirts हो गया. सो एंड गुड्डू और मेरे घर का फासला 10 कदम की दूरी पे है, जो कि हमें नहीं पता था. 2017 when we started dating each other, before that I didn't knew कि गुड्डू का घर मेरे घर से 10 कदम की दूरी पे है. ना ही मैंने उसको कभी अपने मोहल्ले के सामने देखा हुआ है. हालांकि उसके पेरेंट्स मुझे देखे हुए हैं, जानते हैं मेरे पापा को, जो भी है. एंड दे हैव सीन मी बिफोर दैट, दे हैव सीन मी. सो हम जब कोई नया इंसान से मिलते हैं तब हम सोचते हैं कि वी नीड टू ड्रेस अप अ सर्टेन वे और वट एवर. बट मेरा दिमाग में ऐसा कभी कुछ नहीं आया क्योंकि उन्होंने मुझे पहले देखा हुआ है. मैं अपना लिबास बदल के जाऊंगी तो ऐसा तो नहीं है कि उनके दिमाग में मेरे लिए अलग ही छवि बैठ जाएगा. सो इट वॉज लाइक पहले मैं जैसे उन्होंने मुझे देखा था, मतलब उन लोगों ने, गुड्डू के पेरेंट्स वगैरह ने, तो वैसे ही मैं अभी भी हूँ. एंड माई हस्बैंड, my in-laws, they don't have any issue. They never poke me about my dresses. They never poke me about whatever I'm doing in life, and my parents don't have any issue. So this was the context I wanted to give it before I come to that Manusiyat wala lady. She, first of all, she denied, and then she kept on going for 2-3 minutes. Since she was speaking in Bhojpuri, which I understand but not that level, but she was definitely talking ill about me. This much I understood. And then the last line was, ऐसे कैसे ससुराल में ऐसे कैसे ये सब पहन के आ गई, साड़ी वगैरह पहन के आना चाहिए, ये आप मुझे बताओगे. like who the hell you are to say me what I will wear. That day particularly when I went there, I did not think about anything. I did not put on any makeup or anything. I just wore my sandals and I wore the dress which was out, which was supposed to be washed. I wore that and I went there. I just thought about my comfort, that's it. And one more context I would like to give you guys, for people who don't know. Most of the people know, but
for people who don't know, we women, we don't dress up for other people. We don't dress up for anybody in this world. We dress up for ourselves. Sometimes we dress up for our comfort, sometimes to feel good, sometimes to look good, sometimes depending on the occasion, depending on the place. It's never about other people, it's about us. And for me, most of the times it's about comfort. तो जब उन्होंने ये बात पूछा एंड वो जब बड़बड़ा रहे थे बिफोर द लास्ट लाइन व्हेन शी वाज कंटिन्यूअसली गोइंग, गुड्डू के पापा उन्हें स्टॉप करना चाह रहे थे ये बोल के कि अब होगा, आप समझ जाओ, बिकॉज ही नो मैं चुप बैठने वाले में से नहीं हूँ। दे ऑल नो कि मैं बहुत मुफट हूँ, लेकिन सही में मैं बोलती हूँ। लाइक मेरे मन में मैं कुछ नहीं रखती, मुझे जब जो खराब दिखता है, जब जो बुरा हो रहा होता है, मैं टूट पड़ूंगी। एंड दिस इज़ अ क्वालिटी विच दे नो, एंड वो हमेशा बोलता है कि गुड़िया के मन में कुछ नहीं रहता, वो बोल देती है। एंड मैं वैसी ही हूँ, एंड दे एक्सेप्टेड मी द वे आई एम। तो गुड्डू को पता चल गया अब कुछ कलेश होने वाला है। ही वॉज सिटिंग राइट beside me, and he walked off, and he went inside the room, which was, I couldn't take that. मुझे बाकी सबसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। I just wanted him to say at least one thing, that आप कपड़ों पे क्यों जा रहे हो, कुछ तो बोलता, कुछ तो बोल के निकलता। मुझे ही बहुत गुस्सा आया, बहुत ही गुस्सा आया। एंड देन द लास्ट लाइन व्हेन शी सेड कि ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे आप मुझे बताओगे, ऐसे कैसे होगा। मतलब उनके हिसाब से संसार का पूरा ठेका मैं लेके रखी हूँ, वो सब कुछ बदल देंगे, मुझे बोल के वो बदलवा देंगे कि मैं क्या पहनूँ, मैं क्या पहन के आऊँ, मेरे सास ससुर को एकदम ब्रेन वॉश कर देंगे। वो ऐसा मतलब सीन बना रहा था कुछ। एंड आई वॉज लाइक, मुझे अभी भी खून खोल रहा है जब मैं बोल रही हूँ। एंड आई वॉज लाइक ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मतलब क्या। तो मैं काउंट कर रही थी अपने अंदर की 1 2 3 4, शांत हो जाओ, मैं नहीं कर पाई। द लास्ट लाइन मैंने हर्ट कि ऐसे कैसे। आई सेड आंटी आप मुझे जानते हो। आंटी भी बोलना नहीं चाहिए था, मुझे तो ऐसा लगा उनका जीभ निकाल के उनके हाथ में दे दूँ, बट आई वॉज जस्ट कंट्रोलिंग माई सेल्फ। सी आई एम स्टिल शिवरिंग। आई सेड हर कि आंटी आप जो ये मोहल्ले में, पूरा मोहल्ले में जो आप जो मैक्सी पहन के ऐसे गमछा लपेट के घूम रही हो, मैं आपको कुछ बोलने गई, आप मेरे कपड़ों में क्यों आ रहे हो। आप मुझे पूछो ना तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ये वगैरह वगैरह। आप मेरे घर में आए हो, आप चाय पियो, आप चाय पानी पियो, जाओ। नहीं ऐसे कैसे, मैं तो अच्छा भला समझ के बोलने गई, कोई ऐसे कैसे आ जाता है अपने ससुर के सामने। आपको क्या दिक्कत है भाई, आप नहीं जा पाए आपके सास ससुर के सामने, मैं ऐसे हूँ, मैं उनके घर में बेटी जैसा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है। See, women out there, they love pulling other women down. They love. बोलता है ना, औरत ही औरत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मुझे एकदम ये लाइन उस दिन सही लगा, पूरा सही लगा। मतलब यहाँ पे इतने सारे मर्द बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है मेरा ड्रेस से। गुड्डू का दादाजी बैठा हुआ है, गुड्डू के पापा बैठे हुए, गुड्डू बैठा हुआ है, किसी को दिक्कत नहीं है। वो औरत आ गई कहाँ से उठ के, मेरा घर का कोई नहीं लगता है, कोई नहीं। वो अपने आप को मौसी भी बना लिया खुद से, मैं मौसी जैसा वो बोल दिया ये वो। आप मेरे मौसी नहीं हो भाई, मेरा सिर्फ एक ही मौसी है, वो मेरा मम्मी का बहन है, और कोई मौसी नहीं। एंड देन मैं रूम के अंदर चली गई, क्योंकि ज़्यादा बोल दूंगी तो विवाद हो जाएगा। आई जस्ट दैट डे, वो बोलने के बाद मैं चुप इसलिए हुई क्योंकि मैं अपना ससुर का इज्जत करती हूँ। वो वहाँ पे बैठे हुए थे, वो मेहमान जैसे थे उनके लिए, तो मैं चुप रह गई। तो मैं घर के अंदर गई एंड गुड्डू वॉज कॉलिंग मी। बिफोर आई ओपनड अप माई माउथ ही वॉज कॉलिंग मी, एंड आई वॉज लाइक तुम खुद तो बोल नहीं पाया, मैं अपने लिए स्टैंड ना लूँ। भाई ये औरत फिर से मेरे घर में आएगा, दोबारा मेरे को कुछ सुना के जाएगा, तुम मेरे घर में आओगे, कुछ मुझे सुना के चल जाओ, मैं तो भाई चुप नहीं रह सकती। लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, लेट मी टेल यू दिस। बचपन से लेकर आज तक, मैं अभी तक मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है। बचपन से लेकर बहुत कुछ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, सब कुछ में एक्सपीरियंस है मेरा। तो कौन किसके लिए है, कौन किसके लिए नहीं, कौन मेरे लिए खड़ा था, कौन नहीं, मुझे सब कुछ पता है। At the end of the day, I found myself alone. I was standing alone for myself at my lowest point of my time. I was there. So I will always be there. मुझे कोई रोक नहीं सकता है। And I am enough for myself. इतना मुझे पता है। लेकिन
वो जो गुड्डू वहाँ से चल के गया ना, वो मुझे खला, क्योंकि when you are married or when you have a partner, you have certain kind of what to say expectations. So मुझे मैं वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन वो बोला नहीं, विच वॉज फाइन। मैं बर्स्ट आउट हुई एंड मैं घर के अंदर गई। फिर मुझे रोना आया। मुझे रोना इस वक्त का आया कि गुड्डू मेरे लिए कुछ नहीं बोला। बिकॉज मेरा ये था कि मेरे स्पेस में अगर तुम्हें कुछ कोई बोलता है तो मैं तो उसका मुंह तोड़ दूँ, बट सेम वे तुम्हारे घर में कोई कुछ जब बोलता है तब यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर मी, बिकॉज मैं बोलूँगी तो वो आई विल बी द बैड पर्सन, तुम बोलोगे तो इट विल बी लाइक हाँ वो अपने बीवी के लिए बोल रहा है। यू विल नॉट बी द बैड पर्सन बट आई विल बी द बैड पर्सन। So anyway, I don't mind being the bad person. I don't like when people like me. I like when people don't like me. So मैं लेकिन रोई। मुझे बहुत बहुत हर्ट हुआ क्योंकि गुड्डू ने नहीं बोला। तो गुड्डू को ऐसा लगा कि वो औरत बोलने की वजह से मुझे हर्ट हुआ, तो तब उसको बुरा लगा एंड तब वो औरत को बुलाने गई कि आप इधर आइए। तो वो घर में घुसने के बाद बोलने लग गया कि तुम कैसे मुझे बुलाया, मौसी बोल के बुला सकता था, ये वो दूसरा टॉपिक में जा रहा था, क्योंकि वो औरत ही वैसा है, उनको कुछ समझा के फ़ायदा नहीं है। वो बोलते हैं ना कि मतलब वो सब कुछ एकदम ऐसे चुगली करने वाला जिन नहीं होता है, वैसा वाला एकदम। तो जो भी है, गुड्डू ट्राई टू एक्सप्लेन दैट लेडी कि ऐसे नहीं बोल सकते आप किसी को भी, किसी के कपड़ों के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी और के घर में जाके आपने, वो तो अपने ऊपर ही चढ़ रहा है, वो बोल रहा है नहीं ऐसे कैसे यार भाई ऐसे कैसे, वो तो मानने पे ही रेडी नहीं है। आप मत मानो, आई एम नॉट सिटिंग आउट हियर टू एक्सप्लेन यू, टू टीच यू। आप नहीं बोलो, आप क्यों बोलोगे, बात इतना है आप क्यों बोलो, आप कौन होते हो बोलने वाले, आपको मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगी। बट देन वो मतलब ऐसा बोल दिया कि नहीं मैं तो मौसी जैसा सोच के, मतलब अभी टॉपिक चेंज कर रहा है क्योंकि उनको मतलब मैंने भी बोला, तो वो ऐसा चेंज करने जा रहा था कि नहीं मोहल्ले से आप जब जाओगे तो कोई और आपको छेड़ देगा तो मुझे ख़राब लगेगा। भाई मेरे लिए वो मेरा पति बोलने वाला है, वो देख लेगा, और आप मुझे क्यों बोल रहे हो। अगर मोहल्ले में कोई बोलने जा रहा है तो आप वो मोहल्ले वाले लड़कों को बोलो ना कि ऐसे लोगों को छेड़ना गलत है, आप मुझे क्यों आके बोल रहे हो, आपका मोहल्ला है ना, आप मुझे अगर सुधार सकते हो तो उनको जाके बोलिए। लाइक उनके हिसाब से बेसिकली संसार का पूरा ठेका औरत जात लेके रखा हुआ है कि मतलब मान मर्यादा इज्जत सब कुछ का ठेका हम लेके रखे, हम लड़की लोग लेके रखा है, औरत लोग लेके रखा है। इतना सब कुछ के बाद मैं उनसे तो बहस करने नहीं जाऊँगी। माई जस्ट पॉइंट वॉज वाई गुड्डू डिड नॉट स्पीक अबाउट मी। मैं यहाँ पे अटकी हुई थी हर वो वाइफ की तरह। वो सब तो मैं इन लोगों को तो कुछ भी नहीं, मैं तो मतलब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है मेरे बारे में, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है। तो वो तो मेरे लिए स्टैंड लेने वाली मैं हूँ, क्योंकि आज तक मैं थी, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगी। लेकिन मुझे सिर्फ इतना एक्सपेक्टेशन था कि ही नीड्स टू लर्न, वेदर ही स्पीक और नॉट फॉर मी, ही नीड्स टू लर्न। मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये चीज़ मैं उसको समझाने के लिए मुझे मन ही नहीं कर रहा था उस दिन। तो मैं उसके बाद वो सब हो गया, वो बोल दिया, मैं बोलने के बाद वो बोला, हाँ वो पॉइंट था, मैं बोलने के बाद बोला वो। तो उसके बाद जब घर आई मैं स्टॉप, कोई बात ही नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट जो कि काम आता है। सो जो भी है, देन ही मेड श्योर कि ऐसे बोल ही रहा है कि गुड्डू चलो महामृत्युंजय चलता है। वो आंटी से क्या बहस करती, तुम तो बोल ही रहे थे अपने लिए। अरे मैं बोल रही थी अपने लिए, तो वो औरत से क्या बोलने जाओ। इट्स नॉट अबाउट औरत, इट्स अबाउट लाइक व्हेन समबडी कम्स टू योर होम एंड से योर पीपल समथिंग, you need to stop them because they get the license to do it again. Then if you stop them once, it will hit them, it will be like a slap to them. So that was basically my point. तो मैं तो अपसेट थी इस वजह से कि गुड्डू ने कुछ नहीं बोला। बाकी वो औरत जो बोला मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं वो देयर एंड देयर आई डील विद दैट। आई ऑलरेडी सेट कि आप जो मोहल्ले में ऐसे मैक्सी पहन के घूम रहे हो वो क्या सही है, मैं कुछ बोलने गई हूँ। वही औरत को आप देखोगे इतना इतना पेट निकाल के साड़ी लपेट के घूमता रहेगा, साड़ी लपेट पे मन में जहर लेके लोगों के लिए। सो वो सही है। एटलीस्ट हम जो मुंह पे है वो दिल पे है, मुंह पे है बोल देते हैं, ऐसे रखते नहीं चीज़ें।
फिर आते समय मैंने सुना कि वो किसी और का घर में भी घुस के ये सब बातें बोल रहा था, मतलब फ्लेक्स मार रहा था बेसिकली, जो भी चीज़ मुझे लेना देना ही नहीं है। लेकिन मुझे ये फ़र्क पड़ा कि ही डिड नॉट स्पीक अबाउट मी, तो ये फंडा था। एंड देन लेटर ऑन व्हेन वी केम होम ही अंडरस्टूड लिटरली कि हाँ उसने गलत किया है। आफ्टर सम टाइम ही सेड कि नहीं ठीक है, आज के बाद आई विल टेक अ स्टैंड फॉर मी। आई सेड नो, I am enough for me. You should know that I can take a stand for myself and I am enough for myself, but still you need to speak up. So then he was like, okay, fine, I am sorry, अब मार दो मुझे, गुस्सा थूक दो, ये वो। एंड देन ही लिटरली मेड श्योर दैट आई फील गुड, क्योंकि नहीं तो उसका दिन तो ख़राब हो जाता। वहाँ मृत्युंजय मंदिर भी जाना नहीं होता है। एंड आई ऑल्सो डिडंट वांट टू स्टार्ट माई ईयर ऑन दिस नोट, जो कि स्टार्ट बेसिकली हो ही गया था। एनीवे, दिस वॉज इट एंड आई जस्ट वांट टू से ऑल माई व्यूवर्स, मैंने बोला ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा हुआ है। एंड आज मुझे जो मन करता है मैं वो करती हूँ। मुझे कुछ खाने का मन करता है मैं वो खाती हूँ, मुझे कुछ पहनने का मन करता है मैं वो पहनती हूँ, मुझे कुछ खरीदने का मन करता है मैं वो खरीदती हूँ। आई एम बेसिकली द प्रोवाइडर फॉर माई सेल्फ, देयर इज नोबडी हु इज़ प्रोवाइडिंग मी। एंड व्हेन आई से दिस लाउड। एंड आज मैं अगर कुछ करना भी चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं भी कर पा रही हूँ, सो इट्स ऑन मी। मैं ऐसे लेती हूँ कि मे बी दिस इज़ नॉट द टाइम एंड द टाइम विल कम, बट आज मैं जो भी कर पा रही हूँ आई हैव कम अ लॉन्ग वे, सो आई विल नॉट गिव पीपल दैट मच लिबर्टी टू से मी एनी थिंग। आई विल नॉट स्टैंड। मैं अपने बचपन से बहुत चुप रही हूँ। आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, आई नेवर spoke up for myself, and now I'm very defensive about it. You cannot speak about me anything ill about me and just walk off. I'll not let you do that. So yeah, and I think आपको जब भी लगे कि बड़ों के सामने भी आपको जब भी लगे कि कुछ गलत हो रहा है, you should speak up. Speaking up and keeping your point in a polite way doesn't mean that you are disrespecting somebody. एंड वन मोर थिंग, संसार का पूरा ठेका, मान मर्यादा, इज्जत, एक घर परिवार का इज्जत का ठेका हम औरतें लेके नहीं रखा है। टेक दैट। सो या, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। जिनको बुरा लगा दे डोंट डिजर्व टू बी माई सब्सक्राइबर, एंड जिनको अच्छा लगा आई वेलकम यू विथ wholeheartedly. I welcome you in my channel. Thank you for watching. I'll meet you in my next vlog. Till then, bye bye. Take care. Good night.